Hello everyone, what's up? Welcome back to channel. So if you have missed the chance of joining AFMC or any army medical college during your undergraduation and you aim to join AFMC, you can join AFMC for post graduation and this is all possible. So in this video we will see how we can join AFMC after completing our MBBS from any other college like any other government medical college, any other private medical college, AIMS or any other college. And before beginning, let's see a small clip so that everything becomes more clear. Now let's get started. So this is the information bulletin of 2023. I could not get the latest one, but it will give the overall idea. So you can join in AFMC and other army medical colleges. You can see the list, and you can also join in IIM Bangalore. And there are many things in the brochure, but we'll focus on how a student who has completed MBBS from other college can join for PG in AFMC. So I've highlighted the important things. Let's read it. Counseling will be held online. This is the first important thing. Second is except for the priority 5 candidates, your counseling will be held offline. So ये क्या चीज़ है जो प्रायोरिटी इनको 5 टाइप्स में बांटा गया है, 5 कैटेगरी में बांटा गया है और ये किस तरीके से है इसको हम आगे देखेंगे. सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज जो दी जाएंगी इट इज प्राइमरी फॉर द डॉक्टर्स ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस जिन्होंने एफएमसी से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करी है उनके लिए प्राइमरली है और बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको चांस मिलेगा. बट ये किस तरीके से है इसको हम आगे प्रायोरिटी को देखेंगे. The civilian doctors who get admission in post graduation has to serve a short service commission for 5 years in AFMS. तो तुम्हें एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना है जैसे तुम यूजी के टाइम साइन करते थे 7 इयर्स का, जहाँ पे तुम्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन साइन करना है फॉर 5 इयर्स पीजी कंप्लीट करने के बाद. इसके बाद आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जिसमें प्रायोरिटी के बारे में बताया हुआ है. प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर पीजी एडमिशन इन AFMS. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द AFMS ऑफिसर्स. Second priority goes to the foreign students sponsored by government. Third priority goes to the medical officers sponsored by paramilitary organizations. And then fourth priority goes to the ex-short service commission AMC officers. And the last priority. So अगर ऊपर की चारों प्रायोरिटी फुल हो जाती है उसके बाद अगर कोई सीट खाली बचती है तब लास्ट प्रायोरिटी को चांस मिलती है which is the priority 5 for the civilian candidates. So if you have completed your MBBS from any of the government medical colleges, private medical colleges of AIMS, then you can join AFMC but your priority will be number 5. So अगर ऊपर की कोई सीट खाली बच जाती है तब तुम्हें चांस मिलेगा. And you have to sign a bond agreement that you will serve for 5 years after completion of PG. Instruction for priority 5 candidates is your maximum age should be less than 30 years. 30 years is the limit. So at the time of joining your age should be less than 30 years. The other thing is you have to sign a bond agreement which is of 5 years compulsory short service commission after completion of PG. If you are breaking the bond agreement then you have to pay a amount of 56 lakh rupees. और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेता है उसे अपने 35 इयर्स कंप्लीट करने से पहले पीजी पूरी कंप्लीट करनी है. अगर वो 35 इयर्स से पहले अपनी पीजी कंप्लीट नहीं कर पाएगा ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कमीशन और उसको नॉन सर्विस लायबिलिटी में डाल दिया जाएगा. और उसके बाद सच कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू पे द बॉन्ड मनी टू द ज्यूअर एज एप्लीकेबल टू देम. सो तुम्हें 35 ईयर से पहले अपनी पीजी कंप्लीट करनी है अगर तुम AFMS में ज्वाइन कर रहे हो तो. इसके अलावा तुम्हें मेडिकली फिट होना, तुम्हारे सारे मेडिकल एग्जाम्स होंगे जो मैंने पहले बता दिया था. मेडिकली फिट तुम यूजुअली वीडियो में देख सकते हो, वैसे सारे मेडिकल टेस्ट होंगे और तुम्हें उसमें मेडिकली फिट रहना रहेगा. एट द एज ऑफ 30 ईयर्स तुम्हें पूरा मेडिकली फिट रहना है. सो दैट्स अ बिग थिंग इन योरसेल्फ आल्सो. अदरवाइज बाकी सारे रूल्स सेम टू सेम है सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि हमारे यूजुअली में रहते हैं. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है एकोमोडेशन के बारे में है. No accommodation will be provided to priority 4 and priority 5 candidates as per the Government of India Ministry of Defence जो केवल लेटर के हिसाब से है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न वाली चीज़ है जो कि तुम्हें देखनी चाहिए. मैं ब्रोशर की लिंक दे दूंगा, तुम इससे पूरी को रीड कर सकते हो. और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर अटैचमेंट्स हैं तो मैं तुम्हें लास्ट में बस सारे कॉलेजेस दिखा देता हूँ. मेक इट स्मॉल. सो दिस इज द थिंग. द फर्स्ट कॉलेज इज AFMC पुणे. तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे तुम्हें स्टाइपेंड मिलती है आई गेस. यस तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगी. इसके अलावा सेकंड कॉलेज है तुम्हारा AHRR है दिल्ली में और बेंगलोर में है. तुम्हारे INHS अश्विनी मुंबई में है. CHES कोलकाता में है, लखनऊ में है. तुम जिस सिटी में चाहते हो तुम उस सिटी में एडमिशन ले सकते हो बट मोस्टली स्टूडेंट्स AFMC पुणे में एडमिशन लेते हैं. इसके अलावा तुम लास्ट में अपना IIM बेंगलोर है उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, उसमें तुम्हें स्टाइपेंड मिलती है. So that's all for this video. I hope you have now understood how you can join AFMC after completing MBBS from any other college. So the best advice from me will be if you want to join AFMC,
ज्वाइन इट ड्यूरिंग योर एमबीबीएस टाइम। अपने एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे ही तुम एफएमसी ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हारे पीजी के टाइम पे भी काफी हेल्प हो जाएगी। एंड यस, डू लाइक द वीडियो, एंड फॉर वाचिंग अ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।